Okay, I have removed it. Okay. Hello. Can you hear me, sir, Yes, sir. now? Yes, Yes. 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 Welcome you, sir. Thank Uh, you. Thank you. On the behalf of Shri Alan Hindu College, Rohtak, first of all, I welcome to our honorable resource person, Dr. Ved Prakash Shoran, retired principal from Pandit Nikiram Sharma Government College, Rohtak. I would also like to welcome our worthy principal, sir, Dr. Vijay Kumar Arora ji, who always inspire and motivate us. And I also welcome my fellow faculty members and all the participants who have joined us today from different reputed educational institutions. So thank you all for joining us today. So thank you so much. And now I request Mrs. Ria Sharma to proceed the event further. It's over to you, Ria ma'am. Please. Thank you. Thank you, Gaurav sir. A very good morning to all of you. I, Ria Sharma, heartily welcome to all in this one-day national webinar on the topic Solar Energy Energizes Soul of India, organized by Department of Science, Shri Alan Hindu College, Rohtak. This topic is significant not only for science stream rather than all the streams, as solar energy is power from the sun, which is vast, inexhaustible, and clean source. Solar energy can be used daily for heating, lighting homes, generating electricity, and a variety of other commercial and industrial uses. Today, our resource person, Dr. Ved Prakash Sharanji, retired principal from Nikiram College, Rohtak, will enlighten us with his valuable view on the said topic. I am honored and pleased our resource person for accepting our invitation. Dr. Ved Prakash Sharan sir has a vast experience of 36 years. He received his primary education from government school at Una and did his MSc in physics and won the gold medal. And MA in journalism, he also hold a PhD in physics to his credit on climate change of Antarctica. Dr. Sharan sir career as teacher started in 1982 when he joined Jat College Rohtak as lecturer in physics. Then he moved to Government College Bhiwani and then he taught physics at University College Rohtak. Then he worked as head of the department, Pandit Nikiram College, Rohtak. He is a dynamic personality who has been awarded with Man of the Year award by American Biological Institution, North Carolina, USA in 2004 and also with Best Principal Award, Bharat Jyoti Award and Education Excellence Award. Although he is from science field, but he has a keen interest in literature also. He has also written two books named Kasak and Kashmakash, which are very popular. He has a major contribution in social sector also. He is associated with 40 social organizations like MTFC, Nishulk Public School, Manav Seva Sangh, etc. He is a renowned name in the field of anecdote. Near about 350 anecdotes have been published in different magazines and newspapers. As a speaker, he is simple and impressive. He always establishes a connection between himself and audience. Sir, आज हमने आपको एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाया है, लेकिन सर आप हमारे हिंदू कॉलेज फैमिली का ही पार्ट हैं. सर हमने आपको भी बुलाया है, आपने कभी मना नहीं किया. आप हमेशा सर हम आते हैं, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं और सर हमेशा अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देते हैं. सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. नाउ आई रिक्वेस्ट Thank you, डॉक्टर sir. वेद प्रकाश सर टू टेक अप द सेशन. ओवर टू यू सर. Good morning, all of you. It's my great privilege to be with Hindu College faculty, principal, and students. And I always feel proud to talk in a simple way instead of formal. I wish to thank specifically to Principal Vijay, Riya ji, and Gaurav ji. She has spoken Thank you, many sir. of the times for me.
I am really thankful to all of you. And Thank you, sir. इससे पहले कि हम लेक्चर वगैरह शुरू करें, मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूँ. I have attended many webinar as well as seminars in the earlier times, and there were 2-3 types of participants. Some of them were interested only in certificate. Some of them were interested really in the topic. And if you are not so serious, सेमिनार्स का जो फायदा हमें होना चाहिए वो अक्सर हम नहीं उठा पाते. मैं अपनी तरफ से आपको ये प्रोमिस करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सिद्ध करने की कतई कोशिश नहीं करूंगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा. मैंने देखा है रिसोर्स पर्सन पहले 5-7 स्लाइड दिखाते हैं, फिर 10-12 दिखाते हैं, फिर 50 तक जब हमारी हिम्मत टूट जाती है, फिर 55-60 और उनका भरता ही नहीं है और स्लाइड की संख्या बढ़ती जाती है. I promise not to show you even a single slide. जो बात करेंगे हम बात ही करेंगे और मैं भाषण बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगा. और इसी तरह से मैंने देखा ज्यादातर सेमिनार्स आंकड़ों के फेर में उलझ कर रह जाते हैं. हम जो विजन लेकर चलते हैं, हमारा एम होता है वो पूरा ना हो के कुछ और ही सिस्टम शुरू हो जाता है. तो मैं भी आपको ज्यादा आंकड़ों में नहीं उलझाना चाहूँगा. सिर्फ आंकड़े हम वहीं यूज करेंगे जहाँ हमारे लिए हेल्पफुल होंगे. आशा है आप इस सेशन में मेरा साथ देंगे, क्योंकि वेबिनार में ये फैसिलिटी भी होती है, आप वीडियो ऑफ करके और फोन को कहीं रखते. बहुत सारे वेबिनार मैंने किचन में होते सुने. मैं कोशिश करूंगा कि आप स्क्रीन छोड़ के नहीं जा पाए. इसके लिए मुझे साइंस से थोड़ा सा इधर उधर हटना पड़ेगा, तो भी कोई ज्यादा दिक्कत मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए. हमारा आज का टॉपिक सोलर एनर्जी एनर्जाइजिंग सोल ऑफ इंडिया. मुझे नहीं लगता आपको ये बताने की आवश्यकता है कि सोलर एनर्जी क्या होती है. Everyone is well aware of it. The energy converted into some useful form and the energy radiated by sun. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे सन से बहुत सारी आती हैं. उनमें से जो विजिबल पार्ट है, खास तौर पर जिसे हम कहते हैं, that content some हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरी तरह की एनर्जी भी है. हम उसे कोशिश करते हैं इस तरह से कन्वर्ट करें कि हमारे काम आ जाए, एंड दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी. एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम सन नोन एज सोलर. का अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो मैं बताना चाहता हूँ इसको दूसरी तरह से. अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले की बात है. देयर इज ए प्लेस नोन एज, यहाँ गांव है, यहाँ से मेरे ख्याल में होगा 60 किलोमीटर के करीब, और जन सेवा संस्था का वहां पर एक महिला आश्रम का उद्घाटन होना था नए का, और मैं भी स्वामी जी के साथ वहां गया हुआ था. तो गाड़ी को पार्क करने के लिए मुझे आश्रम से थोड़ी दूर जाना पड़ा. जंगल में था, जून का महीना, तपती दोपहर, और मैं गाड़ी पार्क करके जब पैसे निकला तो अंदर एसी था और बाहर की तरह से धूप पड़ रही थी. तो मैंने देखा साइड में ठंडे पानी का ट्यूबवेल चल रहा. न कोई आवाज आ रही, न कुछ, कोई किसान था, कुछ भी नहीं वहां पर. दूसरी तरफ मैंने देखा एक सोलर पैनल लगा हुआ है, उसके 2 तार आए हुए हैं, और जो पाइप है उसके वो तार अंदर गए हुए हैं, पानी अपने आप वहां से निकलने लग रहा है. मुझे लगता है ये एनर्जाइजिंग द सोल ऑफ इंडिया है. सोलर एनर्जी का सीधा उपयोग हमारे किसानों को सीधा फायदा इसका मिल सकता है अगर हम इसे लार्ज स्केल पर. शायद आपको मालूम हो, पंजाब के किसानों में कहीं पर भी इनोवेशन हो तो वो सबसे आगे रहते हैं. और कुछ किसान तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी वो अलग अलग तरह के क्रिएटिव काम करते रहते हैं, जिसको हम हिंदी में, हरियाणवी में जुगाड़ बोलते हैं. किसी चीज को किसी पे लगाया और उसका यूज कर लिया हमने. तो बिल्कुल इसी तरह से वहां पर खेती तो पंजाब में लोग करते ही करते हैं, उसके ऊपर 20 फुट ऊंचाई पर होल लगाकर और वहां पर पैनल लगा देते हैं. और उस सोलर पैनल से जो बिजली हम पैदा करते हैं, उसका यूज और लाइट करते ही करते हैं. वहां पर गवर्नमेंट ने रखी है कि आप उस सरप्लस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को यू कैन सेल इट टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड.
सच फार्मर इज वेरी स्मॉल वन, लेकिन एक शुरुआत है और किसान के लिए एक सोर्स, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बन के रहे। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे लिए कितनी सारी संभावनाएं हैं। आपके बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर कोई ऐसी बात बताइए जो हमारे मतलब की है। हाँ, मैं वही बात करना चाहूंगा। लेक्चर वेक्चर बाद में होता रहेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले साल मैंने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाए हैं और उनकी कैपेसिटी है 8 किलोवाट। समझ सकते हैं 8 किलोवाट इज 7 एडिशनल, इतनी ज्यादा कैपेसिटी हो जाती है। और बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मुझे लगाने में तो हफ्ता भी नहीं लगा। 3 दिन में उन्होंने वो पिलर से बेस बना के उसके ऊपर स्टैंड लगा दिए, फिर उसके बाद पैनल फिट कर दिए। थोड़ा वो सरकार की पूरा करने यहाँ एक बोर्ड बना हुआ है, तो उसके लिए पहले वहां अप्लाई करना पड़ता है। वो फिर उसको टेस्ट करके साइट को ओके करते हैं कि आप जहाँ पैनल लगाएंगे वहां पर कोई छाया वगैरह तो नहीं आती, और इसकी वजह से कहीं आपकी ऐसा तो नहीं है कि सोलर एनर्जी कम बन पाएगी। आपको जितने वाट चाहिए उतने वाट का एस्टीमेट ठीक है या नहीं। एक पैनल 25 किलोवाट का होता है, तो अपॉन रिक्वायरमेंट जितना भी आप 4 किलोवाट, 2 किलोवाट, 6 किलोवाट जितना भी आप लगवाना चाहते हैं उस अनुसार पैनल की संख्या होगी। मैंने वो अप्लाई करके सारा सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन ही आपका सैंक्शन होकर आ जाता है। और जैसे कराता है कि जो दूसरी एजेंसीज हैं ये आपसे संपर्क कर लेते हैं। जो पैनल लगाने वाली एजेंसी है, इट इज ए वेरी कॉम्पिटिटिव रेट। 3-4 लोगों ने संपर्क किया और पिछले साल जो उनका रेट था, ये भी था कि रेट भी हमारे घटते आ रहे हैं। पहले जो इंस्टॉलेशन थी उनको ज्यादा थी, आजकल वो बहुत कम हो गई है। नियरली पर किलोवाट, यानी 8 किलोवाट का अगर हम लगाते हैं तो 4,80,000 रुपये। 8 किलोवाट आम घर में जरूरत नहीं थी, थोड़ी ज्यादा ऑफिस वगैरह की वजह से जरूरत थी, रात को दिन में दोनों टाइम, इसलिए ज्यादा का लगवा लिया। अगर हम घर में तो 2 किलोवाट रहता है के हिसाब से 1 लाख घर में 2 किलोवाट का हमारा सोलर पैनल लग जाता है। अगर 30,000 सरकार उसे सब्सिडी दे देती है। जैसे ही मेरे को ये लेटर आया, साथ के साथ वो एजेंट पहुंच गए कि जी हमारे लगवा लीजिए, हम ये वाला देंगे, हमारी ये गारंटी है, हमारा ये बेनिफिट है, हैवेल्स के स्विच लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसमें आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। और मैंने जो उचित समझा उसको जैसे ही सेलेक्ट किया, उन्होंने कर दिए। 2 मीटर लगाए जाते हैं, एक तो बिजली बोर्ड का जो लगा हुआ वो है ही, जितना बिजली का प्रोडक्शन आपका पैनल करेगा माइनस जितना आपने घर में यूज कर लिया, जो नेट है, यू विल नॉट बिलीव, पिछले 1.5 साल से मेरे घर में बिजली का नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रोड्यूस किया है दैट इज मोर देन दी बिजली। अभी शुरू किया और मन में हमें फिटिंग करनी पड़ती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ आपके घर में है बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। सिर्फ 2 तार आएंगे, वो आपके मीटर में वहीं घुस जाएंगे जहां थे बस, और नेट आपको बताता रहेगा। आप चाहे घर पे खुद भी देख सकते हैं। इवन आजकल बड़ा सिस्टम आ गया, उसमें रीडिंग आ जाती है, आज की इतनी रीडिंग है, अब तक की टोटल है, खर्च कंप्यूटर से जोड़ दें वो अपने आप ही फिट होता रहता है कि आज की प्रोडक्शन ये है। आज साल से ना बिजली बोर्ड में गया हूँ, ना मैंने उस कंपनी को कभी की है, ना भाई। काश ये वाला सिस्टम हमारे सभी किसानों के साथ लागू हो जाए। हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशन है, हमारे पोस्ट खासतौर पर जो शुरू में कैपिटल वो था, और उसका भी मैं पढ़ रहा था नेट पे कि पिछले समय में हमारी जो इसकी कॉस्ट है वो 90%, 1977 में जो कॉस्ट आती थी, आज उसका 99% खत्म हो गया। सिर्फ 1% की कॉस्ट हमारी बची।
1977 तो बहुत बात हो गई है। फिर भी थोड़े से मेरे पास किसी का फोन आया, मैंने 2 साल पहले वो लगा सोलर पैनल, हमारी लेट आई थी, आपकी कितनी लगी? मैंने कहा भाई मेरी 6-7 महीने में आ गई। वो कहते किस रेट से लगवाया? मैंने बताया 60 का। अरे हमने तो 75 रुपये लगवाया था। व्हाट आई मीन इज टाइम के साथ साथ हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और उसकी रनिंग कॉस्ट और उसका खर्चा है वो भी हमारा घटता है। अभी हम एक संस्था है हमारी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके यहाँ पोलिंग पुल है जो की पढ़ने की व्यवस्था करता है, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं करने की। और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो वाटर सोलर सिस्टम, मैं बताना चाहता हूँ वाटर सोलर सिस्टम उतना अच्छी तरह से काम नहीं करता जितना हमारे सोलर पैनल करते हैं। बस इसमें ये है कि आपने बिजली बोर्ड को दे दिया, उसके बाद आप बिजली का हीटर लगाइए, गीजर लगाइए, कुछ भी इस्तेमाल कीजिए। उसमें ये है कि सोलर सिस्टम से जो हम पानी को गर्म करते हैं वही पानी हम स्टोर करके रख सकते हैं। मान लीजिए दिन में क्लाउड आ जाते हैं, बारिश हो जाती है या सर्दी का मौसम है और धूप नहीं निकली, तो ऐसे हालात में फिर हमारी स्टोरेज एक लिमिटेड है। पैनल में ऐसा नहीं है, इसमें हमारा डायरेक्ट उससे लेना देना है बिजली बोर्ड से, आप बिजली बनाते जाइए। तो बल्कि इससे भी अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरा लाइफ का शायद सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं बेटे के पास यूएस गया और में तकरीबन आप 10 बिल्डिंग और 22 फ्लोर में 250 परिवार हो गए। उन्होंने 1 एकड़ में साइड में सोलर पैनल लगा रखे हैं एट 9 completely 9 blocks are interrelated, interconnected, and every type of energy requirement is compensated by that solar panel. उनके यहाँ 24 के 24 घंटे लाइटें ऑन रहती हैं, सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड है, और उसमें जितने भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, चाहे जिम में एक्सरसाइज की जा रही है या कोई दूसरा वॉशिंग मशीन है उनकी, वो सारा का सारा एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उस 1 एकड़ के ऊपर लगे हुए सोलर पैनल से कर रहे हैं। बस इतना है भाई, वो अमीर देश है, उनके पास कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ये थोड़ी सी समस्या है। मैं तो कई बार कल्पना करता हूँ, आप सोच के देखिए, हमने पंचायत की तरफ से एक सोलर पैनल लगवा दिया 5 एकड़ में, 3 एकड़ में, और उसकी सारी की सारी सप्लाई हम अपने गाँव में दें, सारे के सारे इक्विपमेंट हैं उसे चलाएं, ना सरकार से मांगने की जरूरत है, ना मीटर बाहर अंदर का झगड़ा है, ना बिजली बोर्ड पे जाके शिकायतें करनी तो मीटर की रीडिंग लेने आएगा। सारी समस्या हमारी एक से हो सकती है अगर हम सारे गांव के लोग या सारे शहरों के लोग या सारे शहर के जो भी हमारा सिस्टम है उसे करें। मैं समझता हूँ वो एक बहुत अच्छा, नहीं हम गरीब सा देश है और हमारे पास इस तरह के संसाधन नहीं है। हमारी भी काफी अच्छी पोजीशन है। मैं डिटेल में बताना चाहूंगा, हमारी जो अब तक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है वो 2022 तक 175 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य है। सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन का जो, और हमारी 6-7 स्टेट्स तो इतनी बढ़िया है और अच्छा काम कर रही है। एंड टॉप मोस्ट ऑफ दिस कर्नाटका, जिसका टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है, बिजली का जो टोटल पैदावार है उसका तकरीबन 20%, 19.5% हम सोलर से बनाने लग रहे हैं। सोलर हमने डेवलप कर रखे हैं, गाँव में भी है, रूफटॉप बहुत सारी शहरों में काफी प्रचलित है। गवर्नमेंट ने वहां पर भी ये कंपलसरी कर दिया है कि जिसका भी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, 500 गज से जितना भी एरिया आपका ज्यादा है उस अनुसार आपको सोलर कर दिए। तो हमारी काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट 22,000 मेगावाट बिजली कर्नाटक का एनर्जी की फॉर्म में पैदा करते हैं। तेलंगाना में 16,000 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है, जो कुल बिजली का स्टेट की जो टोटल एनर्जी का कंजम्पशन है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, उसका 22 ज्यादा टोटल वो 22,000 14% हमारी टोटल प्रोडक्ट का। बहुत सारी स्टेट है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, गुजरात है, एमपी है,
में चल रहे हैं, फिर पहुंचे हैं जिस स्थिति में हमारी दूसरी स्टेज पहुंच गई। मैं समझता हूँ इस बल्कि थोड़ा सा मैं इसकी अगर वो हिस्टोरिकल वो बताऊं तो 2015 में हमारी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, जिसमें सारे दुनिया के कुछ देशों ने मिलकर किया कि वी विल बी इसमें सारी सोलर रिलेटेड चीजें एंड मेंबर कंट्री प्रपोज ए कैपिटल ऑफ 10 बिलियन यूएसडी, इस तरह का प्रोविजन किया था। और हमारी सबसे ज्यादा टारगेट या सबसे ज्यादा सोलर पे ही क्यों हो, उसे थोड़ा सा अगर हम जस्टिफाई करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम। आज के दिन एनर्जी की जो हो रही है उसका 46% हम रूफटॉप पर पैनल लगा के कर रहे हैं। रूफ टाइप पैनल जो हम लगा रहे हैं उसकी मदद से हम 46% सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं। जो सोलर पार्क हमने डेवलप कर रखे हैं नेट के अंदर उसमें 40% वहां से पैदा कर रहे हैं। 46 तो ये हो गए, वो बाकी दूसरे प्रोसेस से हैं वो हमने लिए बैटरी जिनको हम सोलर पैनल से चार्ज करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है वो भी हमारा। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम थोड़ा डिटेल की बात करें तो सन से जो एनर्जी हमें जो सन से बल्कि पावर की हम बात करें तो 4 से लेकर 7 किलोवाट आवर हर स्क्वायर सेंटीमीटर में पावर हंस की लाइट से मिल रही है। भाषा में अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए 5 बात करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में 5 किलोवाट आवर पावर हमें मिल रही है सन रेज की वजह से, जो कि अगर हम एक साल की कोशिश करें तो 2300 से लेकर 200 घंटे हमारा एक साल इंडिया के ऊपर चमका है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि टोटल एस्टिमेट अगर हम इंडिया के टोटल सरफेस एरिया उसमें मिल रही सोलर एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पावर हम बना सकते। जबकि आज हमारी स्थिति विशेष नहीं है, हम 70% हमारी जो एनर्जी है वो थर्मल सिस्टम से ले रहे हैं, जिसमें कोल है, गैस है, ऑयल है। 60% एनर्जी हमारी कोल से ली जा रही है, जो बहुत महंगी खतर भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, लिमिट भी है। इस समय साथ रिसोर्स हो बैठे बड़ी भारी हमारे सामने आ जाएगी। 70% के करीब वो है। हाइड्रो हमारी 15% के करीब है। न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके जो नुकसान है, उसके जो गंभीर खतरे हैं वो बहुत ज्यादा है। सिर्फ 2% ही हम उसको बना पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी हमारी उसके लिए बहुत विकसित चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। बाकी की तकरीबन 14% बचा, उसमें हम रिन्यूएबल सोर्सेज से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें सोलर का कंपोनेंट भी हमारा बहुत ही कम है। तो हम बताना चाह रहे थे कि सोलर एनर्जी में ऐसा नहीं है कि सारे अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं जिन पे हम थोड़ा सा गंभीरता से विचार कर सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा बड़ी समस्या तो स्टोरेज की लगती है। मैंने शुरू में बताया नहीं, आपको बताना चाहिए था। पहले क्या करते थे हम, आज से 5 साल पहले जितनी भी बिजली बनाते थे वो हमारी डायरेक्ट करंट की फॉर्म में बनती थी, फिर उसे हम स्टोर करते थे और उसके बाद कन्वर्ट करते थे और फिर घर में इस्तेमाल लाते थे। तो आपने देखा होगा कहीं पुराने कहीं लगे हुए देखे हो तो हम बैटरी रखते थे, बैटरी डीसी को स्टोर करती, फिर उसको इन्वर्टर से एसी में बदलते। कभी आपकी बैटरी की टर्मिनल खराब हो गए की वजह से कुछ जम गया है तो डिस्चार्ज हो गई, उसकी लाइफ भी है 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, तो बड़ी भारी समस्याएं आती थी। आजकल हमने क्या किया है, आजकल हमने वो स्टोरेज वाला काम बंद कर दिया है। हम सीधा बिजली बोर्ड को सरप्लस अपना वो देते रहते हैं और वहीं से देते रहते हैं। तो सारी बैटरी रिलेटेड जो समस्याएं थी, जो स्टोरेज रिलेटेड समस्या थी, मेंटेनेंस रिलेटेड समस्याएं थी, इवन कॉस्ट भी हमारी काफी इससे इफेक्ट होती थी। बैटरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और वो रनिंग कॉस्ट भी उसकी काफी महंगी पड़ती है। एक दिन अगर खराब हो जाती है तो आपको और ये वो परेशानी का काम चाहिए। अब क्या है, पैनल आपने छत पे लगा दिया, 2 तार नीचे आएंगे, घर में आपका कोई स्पेस नहीं चाहिए, दीवार पे मीटर लगा है और कोई किसी तरह की आवश्यकता नहीं। पहले क्या था, हमें छत पे कोई कमरा बनाना पड़ता था, शेड डालनी पड़ती थी,
या कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कहीं और करना पड़ता था, जहाँ 5 बैटरी 7 बैटरी रखते, उनको चार्ज करते, फिर इन्वर्टर रखते, फिर इन्वर्टर में कभी फ्यूज उड़ जाता, सौ तरह की समस्याएं थी। तो वो समस्या हमारी आज के दिन कम हो गई है, बल्कि ये तो, लेकिन दूसरी स्टोरेज की जरूर अभी भी बचती है। मान लीजिए हम सब लोग ऐसा करने लग जाएं और बहुत सारी सोलर एनर्जी हमने बना ली, इसलिए वो उसे स्टोर नहीं कर पाएगा, उसे भी सप्लाई ही करनी है। अभी तो हमारी एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट है, हरियाणा में उतनी बिजली नहीं पैदा हो पा रही है जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम जो भी बिजली बनाते हैं वो ले लेते हैं कुछ। एक दिन ऐसा भी हम कर सकते हैं कि बहुत सारी बिजली आप लोग बना दें और लोगों को उतनी जरूरत ही ना हो, तो वो बिजली फिर हम स्टोर करने में हमें दिक्कत आएगी। स्टोरेज की अभी तक हमारे पास कोई स्थायी सा समाधान नहीं निकला है। इसी तरह से इसका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में चाहे जो भी है, लेकिन आज के दिन जो कंपनियां क्लेम करती हैं वो तो 40-40 साल का क्लेम कर रही हैं। समय बताएगा 40 साल तो चलेंगे या नहीं चलेंगी, लेकिन 25 साल तक पैनल का कुछ नहीं बिगड़ता है। मुझे लगता है ये भी हमारी एक लिमिटेशन थी जो कम हो गई है। बाकी तो जो नेचुरल चीजें हैं उनकी लिमिटेशन तो अपने हाथ में नहीं है। फॉर एग्जांपल सन रात को नहीं होता तो हम सन तो नहीं ला सकते, लेकिन उसका भी हमारे पास समाधान है और बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट हमारे उस बारे में हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा आपको, क्योंकि सन में से जो रेज आ रही है वो सिर्फ सन रेज वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है, सिर्फ विजिबल लाइट का सवाल नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं जिनको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। वन इज इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल। तो जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड है उन्हें भी बदला जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा नहीं है कि रात को आपका पैनल नहीं चलेगा, लेकिन जो आपने लगवा रखा है, जो सोलर पैनल आमतौर पर हम घरों में लगवाते हैं, वो सिर्फ सनलाइट को, विजिबल लाइट को कन्वर्ट करता है। अभी रिसर्च चल रही है, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में थोड़ा, तो वहां पर आप देखोगे कि रात को भी हम ऐसा कर सकते हैं, यानी वो समस्या भी हमारी कम की जा सकती है। उसको भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो हमारे काबू ही नहीं है, उसको भी हम कर सकते हैं। साथ साथ हम सोलर एनर्जी की अगर वैसे एक आम आदमी की तरह से बात करें तो भाई सोलर एनर्जी की बात भूल जाइए आप, सन के बिना तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। बिजली तो तब यूज करेंगे ना जब हम धरती पे सर्वाइव करेंगे। हमारे जितने भी इंसेक्ट हैं, इवन पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, माइक्रोब हैं, किसी का भी सर्वाइवल नहीं है। तो सन तो हमें हमारी सारी इकोनॉमी को, हमारी सारी इन्वायरमेंट को, हमारे सारे लिविंग क्रिएचर्स को मेंटेन करने में हमारा सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, वो तो होना ही होना चाहिए। और ये आपको पता ही होगा, हमने साइंस में कितनी सारी प्रोग्रेस कर ली, कितनी सारी हमने प्रोग्रेस कर ली है। इवन हमारे जो सैटेलाइट हैं, इवन हमारे, बल्कि नासा ने तो प्लेन भी ऐसा डिजाइन कर लिया है जो सोलर एनर्जी से चलेगा, तो ऊपर के ऊपर वो चार्ज भी होता रहेगा और चलेगा। के साथ साथ वो प्रोडक्शन है, उसमें दुनिया के जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जिनकी जरूरत है उन देशों में से एक, और अभी भी हम एनर्जी डेफिशिएंट हैं एज ए कंट्री ऑल। हम उतनी बिजली नहीं पैदा कर पा रहे हैं जितनी हमें चाहिए, और इसको कंपनसेट करने के लिए हमने बड़ा अच्छा योगदान है हमारे साइंटिस्टों का। आपको मालूम ही होगा, दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो हमने इंडिया में लगाया है, जिसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। अभी हम फुल कैपेसिटी पर उसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, अभी शुरुआती दौर चल रहा है। और जो 10 दुनिया के सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पैदा करने वाले सोलर पार्क हैं, उनमें से 5 हमारे इंडिया में। ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं या हम गरीब देश है तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि सबसे जो बड़ा दुनिया का सोलर पार्क है वो इंडिया में है, कर्नाटक में शक्ति स्थल के नाम से गया है वो। और 2000 मेगावाट इतनी पावर हो जाती है कि हम उसे बिजली सप्लाई कर सकते हैं जब वो फुल पोटेंशियल पर चलेगा। दूसरी तरफ अगर हम सन की कुल एनर्जी की बात करें तो उसका तो सोचकर ही आदमी का दिमाग घूमना सकता है। एक मोमेंट में सन जो है हमारा तकरीबन 4 × 10⁻26 26 जीरो, 100 में जैसे 2 जीरो होती है, अगर हम 26 जीरो लगाएं तो इतनी वॉट एनर्जी पावर की हर मोमेंट में सन हमारा छोड़ रहा है। और अर्थ के ऊपर उसमें से
1.74 इंटू 10⁻17 वाट पहुंच रही है, क्योंकि रास्ते में हमारा इसका बिखराव भी हो जाता है, डस्ट पार्टिकल भी हैं एटमॉस्फेयर में, दूसरी गैसेज भी हैं, यानी पूरा का पूरा वो अर्थ पर नहीं पहुंच पाता, क्लाउड भी हैं बीच में। रफली अगर हम बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर में तकरीबन 1 किलोवाट एनर्जी हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर मिल रही है। 6 घंटे में, एक उदाहरण दे रखा था मैंने, सोचा आपको बताऊं, आपको सिंपल लगेगा। स्विमिंग पूल है जैसे मान लीजिए हमारे पास, उसका एरिया 48, 12x4 का 12 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा हो, तो 48 मीटर स्क्वायर का एरिया हो, उसमें 6 घंटे अगर धूप पड़े तो हमें जो बिजली पैदा होती है, सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट हम कर सकते हैं, वो 288 किलोवाट हो जाती है, जो कि हमारे आम घर के रिक्वायरमेंट से 10 गुनी है। लेट मी रिपीट, आपके घर में जो स्विमिंग पूल बना रखा है, अगर उसके साइज का हम सोलर पावर प्लांट लगा लेते हैं, अगर पैनल लगा लेते हैं, तो उससे उतनी बिजली पैदा की जा सकती है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसका 10 गुना। ये हमारी एक सिंपल सा उदाहरण है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा इसका कन्वर्सन है। हाँ, वो जरूर है कि भाई हमारे लिए कैपिटल शुरू में थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, और समटाइम अगर आपका लंबा प्लान है तो वो भी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि आप एक बार पैसा लगाएं, और आजकल जो कंपनियां हैं वो 40-40 साल की दे रही हैं, लेकिन 25 साल तो हमारा पैनल कहीं नहीं जाता, ऐसा बताया गया है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, मैंने सोचा आपको बताऊं। टोटल सोलर एनर्जी फ्रॉम सन स्ट्राइकिंग ईच मोमेंट इज 10,000 टाइम्स द वर्ल्ड टोटल एनर्जी यूज। मतलब हमारी दुनिया में जितनी एनर्जी का यूज आज हो रहा है, उसका 10,000 गुना सन उसी मोमेंट में दे रहा है जिस मोमेंट में आप, यानी इस वक्त दुनिया में कितनी एनर्जी पैदा हो रही है उसका 10,000 गुना सन हमें छोड़ रहा है। कोई तिजोरी में से पैसे फेंक रहा हो और 10,000 गुना फेंक रहा हो, उसमें से हमने लपकने हो, तकरीबन तकरीबन सन के साथ हमारी ये बात है। आप सन में से एनर्जी आ रही है, उसका कितना फायदा उठा पाते हैं वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इस मामले में, यानी सोलर एनर्जी के मामले में, चाइना हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, और वहां का एक बड़ा बढ़िया उदाहरण है, अगर आप सुने तो, एनग्रोंग शी नाम के कोई इंजीनियर हुए हैं, वो रिचेस्ट सिटीजन ऑफ चाइना की उसमें आया हुआ है लिस्ट में, और व्हाट ही हैज क्लेम्ड इज कि चाइना का जो सोलर का सिस्टम है, जो सोलर की पॉलिसी है, वो इतनी ज्यादा डायनेमिक है कि हमारा अंदाजा है कि इस सेंचुरी के लास्ट तक हमारी 2/3 से भी ज्यादा बिजली हम सोलर से बनाएंगे, यानी दे आर कंप्लीटली गोइंग टू स्विच ओवर टू द सोलर। आज से कुछ ही समय पहले 1 वॉट सोलर एनर्जी बदलकर 1 वॉट बिजली बनाने में $5 का खर्चा आता था। तो जैनग्रोन सिंह साहब ने इतना ज्यादा उसके ऊपर एम्फेसिस दिया, कैपिटल कॉस्ट के ऊपर, कि उसे घटा घटा कर $3 पर वॉट, $3 पर वाट की ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। और ऐसा कर देने से जो टोटल उनकी 3 गीगावाट, गीगा मींस 10⁻⁹, 3 गीगावाट जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बढ़कर 5 गीगावाट हो गई है। तो चाइना ने ये उदाहरण पेश किया है कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं कैपिटल की कॉस्ट घटाकर भी। तो जितनी भी एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज हैं उनको ये सबक लेना चाहिए कि जितना प्रोडक्शन हम इसका ज्यादा करेंगे उतना इसकी कॉस्ट भी कम होती आएगी। अगर हम स्टेट लेवल पर करें या नेशनल लेवल पर करें तो उस अनुसार फिर हमारी रनिंग कॉस्ट भी और कैपिटल कॉस्ट भी घट जाती है। क्योंकि आज के दिन दुनिया जो है सिर्फ 2% टोटल एनर्जी सोलर एनर्जी की फॉर्म में यूज कर रही है, 98% उसकी अनएक्सप्लॉइटेड है। अभी लॉकडाउन लगा, इससे पहले मुझे भूटान जाने का अवसर मिला, गरीब सा देश है, तो वहां पर जो टैक्सी ड्राइवर था उससे ऐसी बात करने लगे, भाई दिखाई तो देता नहीं, यहाँ कोई खेत वेत भी नहीं दिख रहे, ना कोई बिजनेस का भी दिख रहा है, यार बड़े गरीब सा देश है। कहता नहीं नहीं बाबूजी, हम तो आपके आसरे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कि हम तो जो है यहाँ पर बिजली पैदा करते हैं, वहां पर पवन चक्की और हाइड्रो का काफी है, सोलर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बिजली बनाते हैं। उनकी बस 2 ही है छोटी मोटी, तो इनकम उनकी टूरिज्म से है, बाकी सारा भूटान बिजली प्रोडक्शन पर बेस्ड है, और इंडिया सारी उसकी बिजली खरीदता है। काश हम सोलर एनर्जी को भी इंडिया की सोल के लिए इस तरह से तैयार करें कि हम दुनिया में इस बात के लिए जाने लगे, क्योंकि इंडिया में हमारा काफी सारा
स्पेस भी है, स्पेस इन दी सेंस क्षेत्रफल हमारे पास है, ऐसा एरिया है, राजस्थान है, लद्दाख है, जहाँ पर हमें सस्ती जमीन मिल जाती है, वहां पर आप दुनिया भर का सन लाइट अवेलेबल है। तो मास प्रोडक्शन हम अगर वहां पर करते हैं तो हम काफी आगे इस मामले में निकल सकते हैं, क्योंकि सन की एनर्जी तो कभी कम होनी नहीं, और इसकी अगर प्रोडक्शन कम हो जाए, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दी पावर कम हो जाए, तो फिर तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, और हम चाइना के बराबर आ सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, तो मेरी जो पीएचडी का विषय था वो क्लाइमेट चेंज था, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली। तो मुझे तो लगता है ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है सोलर एनर्जी का यूज, क्योंकि सोलर एनर्जी जितनी भी आप यूज करते जाओगे उस अनुसार ये क्लीन एनर्जी है, ना इससे इन्वायरमेंट पे कोई फर्क पड़ता है, ना इससे कोई रेडिएशन निकलती है, ना इससे कोई खत्म होने का खतरा है, ना इससे कोई साउंड का पोल्यूशन होता है। इतना बढ़िया एक बार आप लगाकर निश्चिंत हो सकते हैं, जिसको कहते हैं चैन की नींद सो सकते हैं, अगर आपने एक बार सोलर पैनल लगा दिया। दूसरा कोई भी सोर्स अपना लीजिए आप, इवन आपका जो थर्मल को तो चलो बहुत सारी समस्याएं हैं ही, जितने भी हमारे थर्मल प्लांट हैं कोई 100% की उस पर नहीं चलता, उनको मेंटेन करना बड़ी भारी मुसीबत है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, चाहे इवन पवन चक्की है, वो भी उसमें भी वियर टियर का काफी सारा खर्चा होता है। न्यूक्लियर के इतने ज्यादा खतरनाक है कि न्यूक्लियर वेस्ट है वो हमारे जान का जंजाल है, सारी दुनिया के लिए एक आफत बनी हुई है, और उससे जो गैसेज निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, दुनिया को तबाह कर सकती हैं, उनसे भी हमें बचना है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंस जो दुनिया बहुत चिंतित है इस बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, लेकिन सोलर एनर्जी इट इज टोटली क्लीन इन्वायरमेंट में, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी विदाउट एनी पॉल्यूशन। और इतना छोटा सा आइडिया है, सन की रेज आप आ रही हैं, हम जब छोटे छोटे थे आपने भी ऐसी शरारत की होंगी, हम छोटे जो थोड़ा सा भोला बच्चा होता था उसका हाथ पकड़ के उसके ऊपर लेंस ऊपर नीचे किया करते थे। जैसे ही आप ऊपर नीचे लेंस को करोगे तो जो लेंस में लाइट गिर रही है वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है और कागज हमारा जल जाता है। कागज पर अगर आपने आग पैदा करनी है तो हम लेंस की मदद से कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जो हीट कंटेंट है सोलर लाइट में, सनलाइट में काफी सारी है, हाथ में जलन पैदा कर सकता है इतनी ज्यादा। दूसरी तरफ हमारा जो सन है कितना का सोर्स है, तकरीबन 12,000 गुना सरफेस एरिया है हमारी अर्थ से, जिसमें से रेडिएशन हमारी निकलती है। उन रेडिएशन का सिर्फ विजिबल पार्ट हम यूज कर रहे हैं, दूसरा जो पार्ट है उसको भी अगर हम कन्वर्ट कर सकें फिर तो कहना ही क्या है। उनका मास की बात करोगे तो वो 330,000 गुना है हमारी अर्थ से। सबसे नजदीक का स्टार है सन, तो जिसको हम शुद्ध भाषा में कहें तो बल्ले बल्ले है, इतना बड़ा सोर्स बिना किसी गंदगी के, बिना किसी पॉल्यूशन के, बिना किसी खास खर्चे के, अभी न खत्म होने वाला, नजदीक से नजदीक अर्थ के हमारे पास अगर कोई सिस्टम है तो वो ये है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैंने कहीं पढ़ी नेट के ऊपर, 1 घंटे में सन जो सोलर एनर्जी देता है वो दुनिया को 1 साल तक उसकी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए काफी है। लेट मी रिपीट, 1 घंटे की सनलाइट दुनिया में इतनी पहुंच रही है कि दुनिया के 1 साल में जितना खर्च बिजली का होता है वो उसके लिए सफिशिएंट है। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमें 1 मिलियन उपभोक्ताओं के लिए सोलर एनर्जी बनाने में 40 साल लग गए। इतनी धीमी गति से हमारी प्रोग्रेस है। अब हमारा स्पीड अप हो गया है प्रोसेस, और अब हम अगले 2 साल में 1 मिलियन से 2 मिलियन करने वाले हैं। तो क्या कहना चाहते हैं हम कि सोलर एनर्जी के फायदे तो दुनिया भर के हैं, अगर उनको हम समरी के रूप में बताएं तो सबसे पहला फायदा तो यही है, लगाते ही अगले दिन से ही आमदनी शुरू, उसी महीने से बिजली का बिल बंद, बिजली बोर्ड की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे घर बिजली आपकी सप्लाई ज्यादा होगी तो हम सरप्लस देंगे, सरप्लस दोगे तो बिजली बोर्ड के पास भी सरप्लस होगी तो बिजली भी नहीं जाया है करेगी। रिमोट एरिया, राजस्थान का कोई गांव है, लेह लद्दाख की कोई जगह है, या कोई इंटीरियर का वो है जहां पर हमारे बिजली के तार नहीं जा सकते, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, वहां अपना पैनल ले जाइए और सारे काम करिए। यानी रिमोट एरिया के अंदर अगर आपको एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए, दिस इज द बेस्ट। इसी तरह से हम किसी दूसरे सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहते। सोलर आपके पास पैनल, मैं तो कहता हूँ काश हमारी एफिशिएंसी, एक बात और हमारे लिए थोड़ी सी मायने रखती है कि अभी हमारे जो पैनल हैं दे आर ओनली 20% एफिशिएंट, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ाने का बड़ा जोर शोर से दुनिया के लेवल पर काम चल रहा है,
तो जैसे जैसे इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारे लिए बहुत सारे फायदे होंगे। जो पैनल अब 2 किलोवाट दे रहा है, अगर वो 80% पे चला गया या 70% पे चला गया तो वही 8 किलोवाट देगा। क्या कहना चाहते हैं हम कि उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाने का प्रयास जारी है, और एफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और हमारे लिए लगवाना भी आसान हो जाएगा, और मेंटेनेंस तो वैसे ही हमारी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक दो मैं आपके लिए नोट करके लाया। हमारे एंटार्क्टिका में 70 देशों ने, सॉरी 29 देशों ने 70 रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में स्टेब्लिश कर रखे हैं। मैं आपको बता दूं, एंटार्क्टिका हमारा स्थान है जहां पर महीने दिन रहता है और बाकी के 6 महीने रात रहती है। वहां ऐसा नहीं है कि हमारे सोलर पैनल काम नहीं करते। भारतीय एंटार्क्टिक स्टेशन है इंडिया का, एंड दैट इज द वर्ल्ड मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट स्टेशन। यूएस को भी हमने पीछे छोड़ दिया। हमारे साइंटिस्ट ने वहां 1.5-2 साल लगाकर इस तरह के पैनल हमने वहां डेवलप किए हैं। एनर्जी की स्टोरेज भी हमने वहां कर ली है, और जो दूसरी रेडिएशन थी यानी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन, उनसे भी हम कन्वर्सन करके 6 महीने तक हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां देते हैं। तो मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट एंटार्क्टिक स्टेशन इज ऑफ इंडिया। ये भी हमारे लिए बड़ी संतोष की बात है। और जो हमारी 20% एफिशिएंसी है उसको बताते हैं आजकल हम बड़ी तेज गति से बढ़ा रहे हैं। मैं कहीं एक रिसर्च आर्टिकल देख रहा था तो उसमें लिखा है कि अब हम हर साल या 2 साल में एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहे। हमारा जो पिछला 3-4 साल का रिकॉर्ड है, हमारी एफिशिएंसी 1% बढ़ती जा रही है। वास्तव में ये एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है आपका जो फोटोवोल्टाइक सेल हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या कंटेंट्स हैं। उस पर जब सन की लाइट डलती है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसके हायर ऑर्बिट से हम ऊपर भेज पाते हैं, कितनी करंट उससे हम बना पाते हैं। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंपिंग टू द हायर स्टेट, मोर विल बी द अमाउंट ऑफ करंट एंड मोर विल बी द प्रोडक्शन। तो उस पर काफी रिसर्च चल रही है। हर 10 महीने में हम उसको 1% बढ़ा देते हैं। आपने हमारी मौजूदा सरकार की वो अभी 15 अगस्त पे शायद ये शब्द आया था, आत्मनिर्भर भारत। मैं कहता हूँ आत्मनिर्भर भारत बनाने का अगर एकमात्र कोई सूत्र है तो वो है सोलर एनर्जी। सारी इकोनॉमी जो हमारी अब स्लो डाउन की स्टेट चल रही है सारी दुनिया में, ये सोलर एनर्जी के ऊपर हम जोर लगाएं तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट इसमें आई जा सकती है, बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है। एनर्जी की हमारी एफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारे कारखानों में सस्ती बिजली हम दे पाएंगे। इतना सारा काम किया जा सकता है कि बहुत ज्यादा, और उससे हम इकोनॉमिक स्लो डाउन से भी निकल सकते हैं। के दिन हमारे पास इंडिया में सिर्फ 16% सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, जिसको सरकार का लक्ष्य है उसे कम से कम 60% तक हम बढ़ा पाए। कहीं पर एस्टिमेशन लगाया जा रहा था कि 2035 में जो हमारी सोलर एनर्जी की डिमांड है वो तकरीबन तकरीबन 7 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए हमें इस बात पर देना पड़ेगा, रिसर्च पर और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा था राजस्थान और लद्दाख की। तो हमारा जो सरकार का एक सबसे बड़ी योजना शुरू की गई है अभी थोड़े समय पहले लद्दाख में। लद्दाख में क्या हुआ है, सरकारी जमीन हमारे पास वहाँ बहुत सारी सरप्लस है, गरीबी है, लोग हालांकि टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन स्पेस जो अर्थ की जमीन वहां पर उपलब्ध है। 45,000 करोड़ रुपए लगाकर हम वहाँ सोलर का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और उस सोलर सिस्टम से हमारी जो एनर्जी है वो काफी अमाउंट सोलर एनर्जी का वहां पर हम पैदा कर पाएंगे, जिससे हमारी तकरीबन कहने को तो ऐसा कहा जा रहा है, हम ऐसा सपना ले रहे हैं कि उत्तर भारत का वो पावर हाउस बनाएंगे हम वहाँ। सारी की सारी सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हमारा लद्दाख में सेट करने वाले हैं। उसमें कुछ लिमिटेशन है हमारी, वैसे ये तो ठीक है 45,000 करोड़ में ये हमारा सब कुछ हो जाएगा, कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ दिक्कतें हैं हमारी। और उन दिक्कतों में जो सबसे बड़ी है वो तो यही कि वहाँ की जनसंख्या इस तरह की नहीं है कि वहाँ से हमें सपोर्ट मिल सके। टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हमें यहाँ से ले जाने पड़ेंगे बाकी के भारत से, और वहाँ से ले जाएंगे तो रहने में बड़ी दिक्कत है वहाँ पर। मैं अभी 2-1 साल लद्दाख गया था तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है 10,000 मीटर से ऊपर, अगर आप सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सिलेंडर की जरूरत कई बार पड़ जाती है अगर कोई। तो वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ को ले जाना, वहाँ तक मशीनरी रोड वगैरह इतने नहीं है जितने अपने बाकी के उत्तर भारत में है। इसलिए वो भी हमारी एक मजबूरी है कि वहाँ हमें सारी मशीनरी को ले जाने में पैनल जाएंगे
थोड़ा सा खर्च होगा और थोड़ी सी हमें दिक्कत आ सकती है इंस्ट्रूमेंट को उनकी वजह से। तीसरा, वहां पर क्या है, पानी की बड़ी कमी है, और कोई भी आप वहां पर इस तरह का प्रोजेक्ट लगाएंगे तो पानी हमें जरूर चाहिए, इसलिए पानी की भी कमी है। लेकिन ओवरऑल हम अगर हिसाब किताब लगाकर देखते हैं तो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू हैव ए लार्ज स्केल सोलर पार्क। इसी तरह राजस्थान में भी हमारा काफी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। हमारे यहाँ जो बिजली का प्रोडक्शन होता है वो 3 स्केल पर किया जाता है। एक स्टेट गवर्नमेंट के बिजली घर है, दूसरा सेंट्रल पूल जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, वहां से हम उधार लेते देते हैं, और तीसरा प्राइवेट सेक्टर है। इन तीनों कोई कसनी पड़ेगी, अब सोलर एनर्जी हम पैदा कर पाएंगे अपने इंडिया की जो राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर मिशन ऊर्जा बोलते हैं इसको, इसका पावर हाउस हम में बनाने वाले हैं। ऐसा सरकार की ऐसा है। मैं थोड़ा आपको चाहूंगा कि सोलर एनर्जी सिर्फ सनलाइट से ही नहीं बनाई जा सकती, सन में से निकलने वाली दूसरी रेडिएशन से भी बनाई जा सकती है। वो 2 रेडिएशन होती है, वन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और दूसरी रेडिएशन, यानी दिन की वेवलेंथ विजिबल से कम है और विजिबल से ज्यादा है। हमारे 7 रंगों के अलावा जितने भी और नेचर उनको बदल सकते हैं। आप इस डिटेल देखना चाहें तो ये रिसर्च कोई मेरी है, मैंने भी TEDx के नाम से उस पर आप गूगल पे सर्च कीजिए, बड़े अच्छे आपको वहाँ पर वीडियो भी और ऑडियो भी और रिसर्च पेपर भी मिलेंगे। तो जो हमारे फिलहाल पैनल हैं दे आर बेस्ड ऑन फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, फोटोवोल्टाइक सेल हैं, और इसमें सेमीकंडक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पी टाइप और एन टाइप 2 सेमीकंडक्टर होते हैं, उनके बीच में हम एक डेप्लीशन रीजन बना के और दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वो जो क्रिएटेड पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बढ़ा देते हैं, उसको कॉम्बिनेशन करके उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं और पोटेंशियल डेवलप करते हैं। पोटेंशियल मीन द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उससे फिर हम बिजली को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारा फोटोवोल्टाइक है। इसमें हम आज के दिन मतलब इट इज ए प्रोसेस विच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, विजिबल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. Now we have another technology known as quantum dots technology. Here the quantum of energy from other electromagnetic radiation, other than the visible, उसको भी हम एब्जॉर्ब करना सीख रहे हैं। यानी जो हमारे क्वांटम डॉट्स हैं वो इस तरह का अरेंजमेंट है कि विजिबल लाइट के अलावा जो एनर्जी कंटेंट्स हैं हमारी सनलाइट में उनको वो एब्जॉर्ब करके और कन्वर्ट करेगा। तो ये वाला जो सोलर पैनल अगर हम विकसित कर पाए जल्द ही, तो फिर हम रात को भी इसी सोलर एनर्जी मिलेगी हमें, और उसमें हमारी ये लिमिटेशन खत्म हो जाएगी कि बरसात में क्या होगा, जिस दिन धुंध पड़ी है उस दिन क्या होगा, या बादल आ रहे हैं। ये अनदर टेक्नोलॉजी इज डाइज। कुछ ऐसी डाइज हमने केमिस्ट्री में विकसित की हैं तो यही काम कर देती है। एंड द अनदर इज नैनोपार्टिकल्स। वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द सनलाइट इनटू दिस electric energy through nanoparticles. Nano 10⁻⁹ मीटर, such a thin particle. जैसे आपने देखा होगा सोलर पैनल जितने भी हैं हमारे सारे के सारे ग्लास के ऊपर है, ग्लास टाइप मटेरियल कह लीजिए। लेकिन अगर नैनो पार्टिकल्स को हम इस तरह की लेयर बना पाए जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो वो इतनी हल्की और इतनी कंफर्टेबल होती है कि बबल, सोप बबल के ऊपर भी उन्हें लाया जा सकता है। आप सोचकर देखिए, आपने जो चश्मा पहन रखा है उसके ऊपर अगर हम नैनो पार्टिकल की लेयर लगा दें तो उस धूप के चश्मे को जब आप पहन कर जाएंगे तो उससे जो सोलर एनर्जी बनेगी वो आपके मोबाइल को, आपके कान में जो मशीन लगा रखी है उसको, और कोई दूसरा ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है जो थोड़ी एनर्जी रिक्वायर चाहिए जिसे उसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो निकट भविष्य में हम इस तरह का करने वाले हैं, इन फिल्म, क्वांटम डॉट्स, ऑर्गेनिक डाइज और नैनो पार्टिकल्स की मदद से सोलर एनर्जी का वो वाला पार्ट जो विजिबल नहीं है उसको भी हम कन्वर्ट करके और इलेक्ट्रिसिटी में बदलने वाले हैं, जिसकी मदद से हमें जो लिमिटेशन, खासतौर पर अंधेरे से रिलेटेड जो लिमिटेशन थी वो हमारी जल्द ही, मैं समझता हूँ, खत्म हो जाएगी। और एक बड़ा वंडरफुल आइडिया है, इससे पहले कि इसको समापन करूं, अगर इंडिया टोटल क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया कहें उसकी बात करें तो कहते हैं कि हमारी सबसे छोटी स्टेट उससे बड़ी, सबसे छोटी से दूसरे नंबर की पर
बड़ी सिक्किम हमारी ऐसे, उस सिक्किम के टोटल एरिया का 35% भी अगर हम सोलर पैनल से ढक देते हैं तो हमारे इंडिया को जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए विल बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। लेट मी रिपीट, सोलर एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में क्रिएट की जा सकती है अगर सिक्किम की क्षेत्रफल का 35% हम सोलर पैनल लगाकर दें। उस सोलर एनर्जी को हमारे सारे मेरे ख्याल से हमें 55 मिनट हो गए हैं आपको धुआंधार भाषण देते हुए। मैंने आपसे किया था, मैं भाषण नहीं दूंगा, तकरीबन भाषण बन गया है। मुझे नहीं पता आपको इतना अच्छा लगा या नहीं लगा, और हमें अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा करना चाहिए और इंडिया हमारा एक दिन सोलर एनर्जी के देश में लीडर बनेगा। ये बात मैं कंक्लूड करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पर भरोसा क्यों करनी या भरोसा जरूरी। किसान था, कहीं जंगल में भटक गया और उसे पानी नहीं मिल रहा था, बहुत बुरी तरह से प्यास लगी, बस मरा या तब मरा। उसे कहीं एक दूसरी तरफ एक दूर एक झोपड़ी दिखती, उसे लगा यार ईश्वर ने रहने का प्रबंध कर दिया। वो बड़ी मुश्किल से उस झोपड़ी तक पहुंचा, आशा में कि यहाँ कोई हो, पानी मिलेगा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था कि जो आशा थी वो धूमिल। इससे पहले उसने मुकर दिखा, दूर एक कोने में मटका रखा हुआ, उसको फिर से ऐसी आशा हुई कि हाँ बचेगा यार, पानी मटका है तो पानी भी होगा। भागा भागा मटके के पास गया, ढक्कन उठा कर देखा तो वहां देखा उसने, उसमें पानी नहीं था, मटका सूखा पड़ा था। इस बार तो उसने सोचा कि ये सब भगवान तेरे साथ मजाक कर रहा है, तेरी तो मौत निश्चित है। वो हताश हो ही गया था कि उसने देखा साइड में हैंडपंप लगा हुआ है। बाप रे, इस बार तो उसे लगा कि नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मुझे पानी जरूर मिलेगा। और उसने हैंडपंप के हत्थे पर खड़ा था तो उसने देखा कि हैंडपंप बिल्कुल सूखा था और उसमें इस बार गिरने को उसने देखा साथ जो पेड़ है उसके ऊपर एक बोतल टंगी हुई है और उस बोतल में पानी है। बस इतने ही सांस बचे हुए थे, उसने बोतल झपकी, बस पीने को ही था कि उसके ऊपर एक लगी हुई और उस पर्ची पे लिखा हुआ, पथिक ऐसा मत करना, तू इस पानी को पी, इस पानी को तू हैंडपंप में डाल दे। जैसे ही पानी को हैंडपंप में डालेगा हैंडपंप चल पड़ेगा, ठंडा पानी मिलेगा, तू अपनी प्यास बुझाना और के लिए मटका भी भर जाना। आदमी ने सोचा पर ये बात सच नहीं हुई और तूने ये पानी इसमें डाल दिया और हैंडपंप नहीं चला, और फिर ये आखिरी चांस है। उसने बड़ा सोच समझ कर, पता नहीं भगवान का इस तरह का उसने सोचा क्या किया, और वो कब उसने पकड़ कर वो पानी हैंडपंप में डाल दिया और फिर पानी डालते ही हैंडपंप चल पड़ा। उसने मटका भरा और वो बोतल भरी और उस बोतल के ऊपर जो लिखा हुआ था उसके ऊपर नीचे लिखा कि कभी किसी के ऊपर विश्वास करना भी सीख लिया करो। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, आपको भरोसा होना चाहिए अपने आप पर, अपने प्रदेश पर, अपने देश पर। मैं हिंदू कॉलेज के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, रिया जी, गौरव जी, विजय अरोड़ा जी, स्टाफ मेंबर जो जितने भी मैं देख रहा हूँ 147 पार्टिसिपेंट के विद्यार्थी भी, और जिसने मेरे से लिंक लिया था उन सभी का बहुत बहुत आभार। कोई बात आप करना चाहते हैं, कोई डाउट या कोई इस तरह का कुछ संवाद करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट सर से बात करना चाहते हैं, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप बात कर सकते हैं। अभी किसी ने हैंड रेज किया था। ओके, थैंक यू सो मच जी सर थैंक फॉर यू। दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। आई होप हम आपके प्राचार्य महोदय हाँ से जी मैं सर। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे याद करते रहा कीजिए, हाँ निसंकोच। बिल्कुल वास्तव में मुझे अच्छा लगता है, हिंदू कॉलेज मेरा सर्वप्रिय कॉलेज है, उससे मेरा बड़ा लंबा रिश्ता है। मुझे भी हर बार अच्छा लगता है। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।
Hello. Now I request Dr. Neelam Maggu ma'am for vote of thanks. Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Yes. Good afternoon, all the participants and sir. डॉक्टर वेद प्रकाश शिवरान जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर अपने इतने अच्छे अपने व्यूज हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। सर ने बताया कि सोलर एनर्जी को हमें यूज करना चाहिए और हमारे जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको सन, दिस इज नोन एज द पावर ऑफ सन। हमारे हरियाणा को उन्होंने बताया कि हमारे पूरे इंडिया में 10 टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। हरियाणा इसमें थोड़ा सा सर ने बताया कि उसमें पीछे है। तो सर के द्वारा इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम सबको दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का सोलर एनर्जी सबसे अच्छा तरीका है। सर का मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने अपनी इतनी ज़्यादा थॉटफुल जो है हमें एड्रेस किया, अपने कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया। मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी थैंक्स आभार व्यक्त करना चाहूँ प्रिंसिपल सर डॉक्टर विजय कुमार जी का, जिनकी हेल्प से हम ये सारे कार्यक्रम जो है आयोजित कर रहे हैं। और फ्यूचर में भी सर ने कहा कि मुझे आपका कॉलेज बहुत अच्छा लगता है सर, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे कॉलेज में, हम बार बार आपको सुनते हैं और आप हमें इतनी मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू रिया मैडम। Thank you, Neela ma'am. Thank you Neelam ma'am. Thank you so Thank you. much. Thank you sir. Thank you all. There is an announcement. The feedback link will be sent in the chat box and also in the WhatsApp group, and the certificates will be issued within the 4 days. So thank you all the participants for joining us today. Thank you so much, and thank you Ved sir for joining us today. Thank you so much. Thank you sir. Thank you, Sharan sir. Thank you so much, sir. Thank you, Neela ma'am. Thank you all the participants. नमस्कार। नमस्कार। आप लीव कर सकते हैं। आप फीडबैक फॉर्म जरूर भर लीजिएगा ताकि आपका सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाए सभी पार्टिसिपेंट्स। फीडबैक फॉर्म आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पे सेंड कर दिया जाएगा। So now it's request to please leave the meeting. All the participants are requested to please leave the meeting. सर चैट बॉक्स में भी डाल दो। Yes मैम, मैंने डाल दिया है फीडबैक लिंक। अगर कोई व्हाट्सएप पे नहीं है तो आप फीडबैक फॉर्म का लिंक यहाँ से ले सकते हैं चैट बॉक्स से। So thank you all the participants once again. Thank you all for joining us. Thank you so much.